السلام علیکم، NTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ علاقائی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی علاقے کھیکھا بگلا روڈ پر 3 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ خوفناک تصادم کے نتیجے میں باپ بیٹا موقع پر جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق افراد کی شناخت 35 سالہ عمران، 4 سالہ محمد ثقلین کے ناموں سے ہوئی۔ زخمیوں میں مختارہ بی بی، احمد فضل، حسنین شامل ہیں۔ ریسکیو 1122 نے جاں بحق افراد اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ کھاریا میں ایک سواریوں میں سے بھرا ہوا رکشہ سواری بٹھانے کے لیے روڈ کے سائڈ پر کھڑا ہوا تھا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 11 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 2 زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر دم توڑ گئے۔ ریسکیو عملے نے بروقت موقع پر پہنچ کر باقی 9 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید یہ کہ پولیس کی کارروائی کے بعد دونوں ڈیڈ باڈیز کو پولیس کے کہنے پر عزیز بھٹی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ فیروز والا کی تھانہ شاہدرہ پولیس غنڈہ گردی پر اتر آئی۔ صحافیوں پر شدید تشدد۔ نجی ٹی وی چینل کے کرائم رپورٹر درخواست کی معلومات کے لیے تھانہ شاہدرہ گئے۔ صحافیوں کا نام سنتے ہی سب انسپکٹر حسن آپے سے باہر ہو گیا۔ صحافیوں پر تشدد شروع کر دیا۔ وردی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے SI حسن نے اپنے ساتھیوں سمیت صحافیوں پر تھپڑوں، مکوں، لاتوں سے تشدد کرتے رہے۔ وردی میں ملبوس گنڈے صحافیوں پر تشدد سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اطلاع پر فیروز والا شاہدرہ کے صحافیوں کی بڑی تعداد تھانہ شاہدرہ پہنچ گئی۔ پولیس نے تھانہ کا مین گیٹ بند کر دیا۔ صحافیوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے لاہور گجرانوالہ روڈ بلاک کر دیا۔ صحافیوں کی جانب سے GT روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ پنجاب پولیس کا سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب اشتہاری مجرمان عدالتی مفرور، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ پنجاب پولیس نے اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفرور کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی یہ رپورٹ۔ پنجاب پولیس کا سنگین جرائم میں ملوث پولیس کا مطلوب اشتہاری ملزمان عدالتی مفروران کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری ملزمان اور عدالتی مفروران کے خلاف کارروائی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پنجاب پولیس نے رواں سال کے دوران لاہور میں صوبے بھر سے 98,335 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا۔ A کیٹیگری کے 33,500، B کیٹیگری کے 64,826 اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے۔ صوبے بھر سے 38,642 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کیا گیا، جس میں A کیٹیگری کے 8,666، B کیٹیگری کے 29,976 عدالتی مفروران شامل ہیں۔ IG پنجاب کا کہنا تھا 19,618 عدی ملزمان بھی گرفتار کیے۔ A کیٹیگری کے 7,662، B کیٹیگری کے 12,156 عادی ملزمان بھی گرفتار کیے گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 21,000 سے زائد اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے، جس میں 15,396 عدالتی مفروران، 8,470 عادی ملزمان شامل تھے۔ بیرون ملک مفرور 39 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ IG پنجاب کی اشتہاری ملزمان کی عدالتی مفروران کو گرفتار کرنے والے پولیس افسران کو شاباش۔ مدعیوں کے ساتھ قریبی رابطہ، مؤثر انفارمیشن شیئرنگ سے خطرناک اشتہاری ملزمان کو قانون کی گرفت میں لائیں۔ IG پنجاب کا مزید کہنا تھا RPOs DPOs خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاری کے آپریشن کی خود نگرانی کریں۔ کیمرامین رانا امن کے ساتھ رانا سرور۔ حاصل پور کے رہائشی محمد ظفر اقبال نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے ایان ظفر کو جرائم پیشہ گینگ نے بہلا پھسلا کر مختلف ڈیرے اور فلیٹس پر لے جا کر بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ زبردستی کی والد کی درخواست پر تھانہ صدر حاصل پور میں مقدمہ درج، 2 ملزمان گرفتار پابند سلاسل، جبکہ دیگر ملزمان ابھی تک قانون کی گرفت سے آزاد ہیں۔ ملزمان کی جانب سے مقدمہ درج ہونے کے اگلے دن دوبارہ ان کے بیٹے کو ملزمان نے اغوا کیا، اور جب بچے کے باپ نے اپنے بیٹے کو بازیاب کروانا چاہا تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور دھمکیاں دی، FIR ہٹا لو ورنہ تمہیں تمہارے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ والد کی دہائیاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا مجھے انصاف دیا جائے اور میرے بچے کو جلد بازیاب کروایا جائے۔ اسلام والی SHO تھانہ شاہ نگڈر کی منشیات فروشوں کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ SHO تھانہ شاہ نگڈر عمار خان نے مخبر کی اطلاع پر نفری کے ہمراہ ریڈ کر کے بدنام زمانہ منشیات فروش عثمان عرف شانی کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد حنیف کلیار سے۔ جی حنیف، بتائیے گا۔
हाल ही में तैनात होने वाले SHO थाना शाहनगर अम्मार खान ने नफरी के अमरात दबंग कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोज उस्मान उर्फ शानी मलोका को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली है। SHO अम्मार खान को मुखबिर ने इतला दी कि मंशियात फरोज उस्मान उर्फ शानी मलोका जो कि थाना शाहनगर पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है, चक 161 शुमाली की तरफ से आ रहा है। SHO थाना शाहनगर अम्मार खान ने सैफुल अखीची वदी के नफरी के अमरा रेड करके शानी मलोका को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। SHO थाना शाहनगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुआशरे को मंशियात जैसे नासूर से पाक करना मेरी अवलियन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लियाकतपुर के नवाही इलाका नूरवाला, बीट ज़ाहिर पीर और बीट भुट्टो समेत मंचनाबाद का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मुतासरीन अभी भी शिकवा कर रहे हैं, लोग अभी भी सैलाब में फंसे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमशेद समद से। जी जमशेद, बताइएगा। मौजूद लियाकतपुर का नवाही इलाका बेट भुट्टो मंचना बंद पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुतासरीन जो है मंचना बंद पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज शरीफ का यहाँ दौरा था, दौरे के बाद उन्हें क्या सहूलियात मुयसर आई, उनसे जान लेते हैं। जी एडे से के मरियम नवाज था अगर आइए तो आपको सहूलियात मिली? मरियम नवाज जो आइए ना उठा कर ज़ाहिर पीर का एक इलाका है उन्दो आइए आ तो उन्हें विजिट किए बाद उठा कर जरा कोई उन्होंने अपना माहौल है वो कीते नहीं, बाकी कोई बंदा कोई विजिट कोई नहीं थिया। जितना कोई बैठे थे कहेंगे न कहने के बस एक जाता है तो अपना जरा कुछ कीते नहीं। अच्छा ये सो बंद होते तो कितने रोज तो कोई कैंप मिले, खाना मिल दे, क्या क्या तक सहूलियात मिल जाए? 4 रोज तो इतना ऐसे देखो ये सारा ओ माल बधा खड़े, ये माल बधा खड़े, ये सामान ये सारा 8:30 घरे से 8 ने मेरा एक पुत्र लुट गए 4 घंटे ने बाद लथे। एक मेरी मेह मार गई है, एक वहड़ मार गई है, पानी लौटते मार गए। बाकी ये ना किसी को तंबू मिले ना किसी जैक ने वेन बाद यूँ फलानी जाते वनो बाद फलानी जाते वनो नूर इतना खड़ूँ। जी बिल्कुल, मुतासरीन की बात आपने सुनी। इनका कहना है हमें कोई सहूलियात नहीं मिल रही, हमारा बेटा भी बह गया है पानी की लहरों में और हमारे जानवर भी मर गए। हम बेयारो मददगार यहाँ बन पे ऊपर पड़े हुए हैं, ना ही हमारे पास कैंप है, ना ही कहीं से कोई खाना वगैरह दे जाता है। बेयारो मददगार हम यहाँ पे पड़े हुए हैं और हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए। जी जलालपुर पीरवाला में जहां सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, नूराजा भट्टा बंद में शगाफ पड़ने के बायस सैलाबी पानी की ये मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जलालपुर पीरवाला शहर पर एक बार सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। नवाही इलाके खान बेला, मोजा, शहनी, मियानी, सुपरा, बस्ती, लौंग और दीगर इलाकों में सैलाबी पानी में दाखिल। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक नवाज इस वक्त दुआ चौक पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा नवाज। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला दुआ चौक पर, जो तहसील जलालपुर पीरवाला है। 2 दरियाओं के संगम में एक तरफ तो दरिया चनाब ने मगरब की साइड पे घेरा हुआ है, जिसमें खान बेला है, शीनी मियानी है, दरापुर है। अगर बात की जाए गुज़श्ता रात राजा भुट्टो मौजे की जो बंद अवामी लोगों ने बांधा हुआ था, ज़मींदारों ने, वो टूट चुका है, जिसकी वजह से वो पानी तेज़ी से शहर की तरफ बह रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है दरिया सतलुज की, तो उसमें पानी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। जो बस्ती लांग है, मोजा सबरा है, मोजा कंडेर है। इस वक्त मेरे साथ बैक साइड पे अवाम अपनी मदद के तहत जो गिलानी रोड है उसके नीचे से पानी का कट लग गया है, वो अपनी मदद के तहत आप ही बांध रहे हैं। ना तो यहाँ पे कोई इंतज़ामिया है, सीनियर वज़ीर होने के बावजूद भी ये अवाम अपनी मदद के तहत खुद ही बांध रही है। अगर ये बंद ना बांधा गया तो शहर जो 80% बचा हुआ था अब वो 100% डूब जाएगा। लिहाजा अवाम ने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से और मौजूदा इंतज़ामिया मरियम औरंगजेब साहबा सीनियर वज़ीर से कि अगर शहर को बचाना है तो यहाँ मशीनरी भेजी जाए और यहाँ पर जो कट नीचे से लग गया रोड के नीचे से, इसको फिल फोर बंद किया जाए। जी दरियाई सतलज में पानी की सतह में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है, लेकिन तहसील आरिफवाला के 40 किलोमीटर दरियाई बेल्ट के दर्जनों देहात ताहाल मुतासिर हैं। इंतजामिया रिलीफ के लिए मुतहरिक है। खुराक, अद्वियात और चारे की फराहमी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद देखते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट।
भारत की जानब से छोड़े गए पानी से तहसील आरीवाला के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। ताहम अब दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी देखने में आ रही है। इंतज़ामिया, अंजुमन आड़तियान समेत दीगर मुख़य्यर हज़रात के ताउन से मुतासरा अफराद को खाने पीने का सामान, ख़ैमे, अद्वियात और जानवरों के लिए सैलज, वंडा और चारा रोज़ाना की बुनियाद पर तकसीम कर रही है। रेस्क्यू टीमें गहरे पानी में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। मरीज़ों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान का कहना है कि किसी मुतासरा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और रिलीफ के अमल को मज़ीद तेज़ किया जा रहा है ताकि मुतासिरीन की मुश्किलात कम की जा सकें। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। शुजाबाद में दरियाई चनाब की तबाहकारियां जारी, दर्जनों घर पानी में डूब गए। 1 लाख आबादी दरियाई पानी से मुतासिर हुई है। पानी बस्ती दरखान वाला में दाखिल हो गया है। दिफाई बंद 2 किलोमीटर दूर, जबकि पानी का प्रेशर तेज रफ्तार होने से नशेबी इलाकों में दाखिल हो रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN अली रजा कुरैशी से। जी अली। जी देखिए, मैं इस वक्त दरिया चनाब के मकाम पर मौजूद हूँ। भारतीय आबी जारी है। शुजाबाद की जो 27 मौज़ूआत हैं वो मुकम्मल ज़ेरे आब आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पड़ने वाला शगाफ है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो सैलाबी पानी है वो आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनका यहाँ कहना है यहाँ पर न ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, न तहसील इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदा हमें नज़र नहीं आया, ना ही हमारी कोई रसी करना है। हमें खैमे भी फराम नहीं किए जा रहे हैं। उनका यही कहना था कि जो हमें खाना है, किसी भी किस्म की सहूलियत हमें इंतज़ामिया की जानिब से नहीं दी जा रही है। दूसरी जानिब उनका यह भी कहना है कि जो हमारी लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह बर्बाद भी हो गई हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से इस तरह किए कि हमारी जो नुकसान है उसका तखमीना किया जाए और हमें जल्द अज जल्द महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। दूसरी मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मेरे कम में पानी ही पानी है जो तबाहकारियाँ मचाता हुआ आबादियों में दाखिल हो रहे। लोगों के घर मुकम्मल डूब चुके हैं पानी के अंदर। लेकिन जो महकमा एलिगेशन है उनकी जानिब से शगाफ पुर करने में भी नाकाम हो गई। महकमा एलिगेशन उनकी जानिब से अभी तक शगाफ मुकम्मल नहीं किया गया है। जो मुतासरीन है उन्होंने हुकूमत से यही तस्दीक की है कि जो शगाफ है इसको जल्द अज जल्द पुर किया जाए ताकि जो हमारी मज़ीद घर हैं वो मुतासिर ना हो सकें। पाकपतन की खेमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े दस्तरखान का एहतमाम। इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा बच्चों की तफरी के लिए झूले भी नस्ब करवाए। राव रमजान एजाज की रिपोर्ट देखते हैं। संदे खां चौक की खैमा बस्ती में मुतासरीन के लिए खुसूसी खाने का एहतमाम किया गया, जहां बड़े दस्तरखान पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया, दुख दर्द बांटे और घुल मिलकर खुशियां शेयर की। इंतजामिया ने यहाँ पे बड़े खाने का इंतजाम किया, स्वीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया, बच्चों में गिफ्ट्स हम बांट रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूध की डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों के लिए, यहाँ पे खेलों की एक्टिविटीज़ हैं। ज़िले इंतज़ामिया अपने सैलाब मुतासरीन अपने मेहमानों के हमरा है। आखिरी बंदे की बहाली तक इंशाल्लाह ज़िले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक इस पे अमल पारा रहेगी। दरिया उतरने लगा है, बच्चों के लिए झूले, जलेबियाँ और मिठाई तकसीम की है, बड़ा खाना और पूरी इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद। इंतजामिया ने खैमा बस्ती में बच्चों की तफरी के लिए झूले भी नस्ब करवाए हैं, जबकि मुतासरीन के लिए खुसूसी तौर पर मिठाई भी तैयार की गई। रोटी खादी है, जलेबी खादी है, सारी चीज खादी है, बाद झूठे लाए, बड़ा बहुत मजा आया। ये खैमा बस्तियां महज आर्जी पनाहगाहें नहीं बल्कि उम्मीद, हौसले और मोहब्बत का वो मरकज हैं जहां मुतासरीन को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि वो तनहा नहीं, हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया इनके साथ हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान एजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। डोंगा बोंगा पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 40 लीटर देसी शराब की चालू भट्टी पकड़ ली, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मोहम्मद अजमल को गिरफ्तार करके मौके से शराब और भट्टी का सामान कब्जे में ले लिया। SHO अब्दुल रज़ाक और SI अदील पराचा की निगरानी में की गई कार्रवाई के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है इलाके को मुनशियात से पाक करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अक्टूबर के पहले हफ्ते से बाकायदा इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करेगा। इंस्टीट्यूट से साहिवाल डिवीजन और इर्द गिर्द के हार्ट के सैकड़ों मरीजों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात दस्तियाब होंगी। इंस्टीट्यूट में दिल के अमराज की तमाम बीमारियों के इलाज की जदीद मशीनरी नस्ब की गई। तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला भी तैनात किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अक्टूबर के पहले हफ्ते इस जदीद इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करेंगी। इंस्टीट्यूट को फाल करने के इंतजाम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इंतजामिया हिदायत की गई है कि वो अस्पताल को मुकम्मल फंक्शनल करने और अद्वियात की दस्तियाबी के लिए रोड मैप तैयार करें ताकि इलाज मुआलजे में किसी किस्म की मुश्किल पेश न आए। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ हिस्से देखे और जदीद तिब्बी मशीनरी का मुआयना किया। लाहौर के थीम पार्क और गिरदोनवा में सैलाबी पानी के निकास का अमल तेज़ हो गया है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की निगरानी में ज़िला इंतज़ामिया वासा पाक फौज के जवान दिन रात काम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात आमिर इकबाल भट्ट की रिपोर्ट में। जी थीम पार्क से दरियाए रावी की जानब आर्जी नाला मुकम्मल किया जा रहा है। गुज़श्ता रात से सैलाबी पानी के निकास का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की हदायत पर 20 डी वाइटरिंग इंजन 2 मुख्तलिफ हिस्सों में पानी बाहर निकाल रहे हैं, जबकि 6 क्रेनें और दीगर भारी मशीनरी भी मुसलसल काम कर रही है। कमिश्नर लाहौर ने किश्ती के ज़रिए थीम पार्क सोसाइटी के वसी हिस्से का जायज़ा लिया, जहां अब भी 5 से 7 फुट पानी मौजूद है। ताहम इतराफ़ में पानी की सतह नुमाया तौर पर कम हो चुकी है। नाला खोद कर भी पानी निकाला जा रहा है। 6300 कनाल पर फैली सोसाइटी में 24 घंटे मुसलसल डी वाइटरिंग की जा रही है। कमिश्नर लाहौर का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक मुतासा एरिया से जल्द अज जल्द पानी निकाला जाएगा। सलाह मुतासरीन के रिलीफ और सहूलियात का अमल बराह रास्त मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कैमरामैन राना आमर के साथ आमर इकबाल भट्ट, NTN न्यूज़ लाहौर। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की हिदायत पर रीजन भर में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए गए। दौरान ऑपरेशन एयरलाइन सब डिवीज़न, लक्ष्मी चौक, बिलाल कॉलोनी सब डिवीज़न के इलाके में लेस्को सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की हदायत पर लेस्को की टीमों ने बिजली चोर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए। जौहर टाउन डिवीज़न की एयरलाइन सब डिवीज़न में ऑपरेशन करते हुए AMO ने अपनी टीम के हमरा बिजली चोर अली हसन को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ पहले से 22 FIRs दर्ज है और वो लेस्को का 30 लाख रुपए का नादहिंदगान भी है। इसी तरह लक्ष्मी चौक के इलाका में एक 3 मंजिला इमारत जिसमें 2 दुकानें और रहायशी कम्प्लेक्स शामिल है, जिसमें 4 कोर वायर के जरिए बराह रास्त बिजली चोरी की जा रही थी। दूसरी जानिब ईस्टर्न सर्कल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उमर बिलाल की हदायत पर बिलाल कॉलोनी सब डिवीज़न के इलाका में 2 मंजिला रहायशी इमारत जिनमें 6 एयर कंडीशन नस्ब थे, जो कि 4 कोर केबल के जरिए बराह रास्त बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया, जिसका तखमीना शुदा लोड तकरीबन 15 किलोवाट था। लेस्को टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी केबल मुनक़ता कर दी और इमारत पर नस्ब तमाम मीटर उतार कर अपने कब्जा में ले लिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी, क्योंकि ये अमल ना सिर्फ कंपनी को भारी माली नुकसान पहुंचाता है बल्कि ईमानदार सार्फिन पर भी बोझ डालने का सबब बनता है। कैमरामैन राना आमिर के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 15 सितंबर को मुतवक्किल दौरा। मियांवाली स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मियांवाली में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह करेंगी। जल्द से आम से खिताब करेंगी। दौरे के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुतवक्किल मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान नियाज़ी। मियांवाली में CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ के मुतवक्किल दौरे के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल सजा दिया गया है। स्टेज की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें पंडाल में पहुंचा दी गई हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और इमारतों पर रगो रोगन का काम तेजी से जारी है। 15 सितंबर को CM पंजाब अवामी जलसे से खिताब करेंगी। इलेक्ट्रिक बसें और जनरल बस स्टैंड का इफ्तिताह भी करेंगी। ज़राए के मुताबिक बड़े बड़े मनसूबाजात का भी ऐलान किया जाएगा। CM पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का भी ऐलान करेंगी। कैमरामैन टीम के साथ हफीजुल्लाह खान नियाज़ी, NTN न्यूज़ मियांवाली। CP ऑफिस में रिटायर्ड DSP सुहेल काज़मी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में DIG एडमिन इमरान कशोर, SSP लीगल गुलाम हुसैन चौहान, PS ऑटो CCPO काशिफ डोगर, DSP डेवलपमेंट मुस्तफ़ा हसन, DSP इंक्वायरीज आमिर इकबाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं लाहौर से राना सरवर की रिपोर्ट।
ریٹائرڈ پولیس آفیسر کے اعزاز میں کیپٹل سٹی آفس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی سہیل کاظمی کے اعزاز میں کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور نے ریٹائرڈ پولیس آفیسر کی خدمات کو سراہا، آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بلاستی کمیانہ نے سہیل کاظمی کو باعزت طریقے سے سروس پوری کرنے پر مبارکباد دی۔ کرائم فائٹر سہیل کاظمی 1987 میں محکمہ پولیس میں بطور ASI بھرتی ہوئے تھے۔ سہیل کاظمی 2020 میں DSP کے عہدے پر پروموٹ ہوئے۔ ریٹائرڈ DSP کو ان کی خدمات کے سلسلے میں 2024 میں غازی میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ریٹائرمنٹ سے قبل بطور DSP آپریشن ونگ گجر پر تعینات تھے۔ سہیل کاظمی بطور سرکل آفیسر مسلم ٹاؤن، اچھرا، مال ٹاؤن اور گوال منڈی میں تعینات رہے۔ سہیل کاظمی محکمہ پولیس کے غازی ہیں، محکمے کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ CCPO لاہور کا کہنا تھا، ریٹائرڈ افسران محکمے کا قابل فخر سرمایہ ہیں، ہمیشہ پولیس فیملی کا حصہ رہیں گے۔ محکمہ پولیس ریٹائرڈ افسران کی گراں قدر خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ CCPO لاہور کا مزید کہنا تھا، میرے دفتر کے دروازے ریٹائرڈ افسران و اہلکار کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر CCPO لاہور نے ریٹائرڈ آفیسر کو یادگار شیلڈ اور گلدستہ پیش کیا۔ تقریب میں DIG ایڈمن عمران کشور، SSP لیگر غلام حسین چوہان، PSO2 CCPO کاشف ڈوگر، DSP ڈیولپمنٹ مصطفیٰ حسن، DSP انکوائریز عامر اقبال اور دیگر افسران نے تقریب میں شرکت کی۔ کیمرامین رانا عامر کے ساتھ انا سرور، NTN نیوز لاہور۔ سلام والی میں ڈکیتی کی واردات، نامعلوم 4 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر کار ڈرائیور سے نقدی اور دیگر سامان چھین لیا۔ تھانہ سلام والی کی حدود میں ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں سے عوام میں خوف پھیلا ہوا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد حنیف کلیار سے۔ جی حنیف۔ تھانہ سلام والی کی حدود میں آئے روز ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ منظور نامی کار ڈرائیور جو کہ کرائے پر کار چلاتا ہے، سواری لینے 130 جنوبی جا رہا تھا کہ چک نمبر 132 جنوبی کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار 4 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر اس کو روک لیا اور 15,000 روپے نقدی اور دیگر سامان جو ہے وہ چھین لیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ منظور حسین نے 15 پر کال کی اطلاع پر تھانہ سلام والی پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ آئے روز ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے عوام جو ہے گھروں میں محصور ہو کر رہے گی اور خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کیمرامین رانا وسیم کے ساتھ محمد حنیف کریار، NTN نیوز سلام والی۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں عوام کے مسائل سننے اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں سرکل افسران انچارج انویسٹیگیشن سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DIG انویسٹیگیشن نے عوام کے مسائل سننے اور فوری حل کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی یہ رپورٹ۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق DIG انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا نے اپنے دفتر میں موصول ہونے والی شکایات کی سنوائی کے حوالے سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ڈویژنل SPs، سرکل افسران، انچارج انویسٹیگیشن سمیت عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے شکایات کو تفصیلاً سنا اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ تفتیش سے متعلق شکایات پر چند کمپلینٹس کی اپنے دفتر میں انکوائری کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ناقص تفتیش پر چند کیسز کو تبدیلی تفتیش بورڈ میں مارک کیا اور تفتیش افسران کو شوکت نوٹس بھی جاری کیے۔ چند شکایات کے متعلق ڈویژنل SPs انویسٹیگیشن کو فوری طور پر ازالہ کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ DIG انویسٹیگیشن نے ڈویژنل SPs انویسٹیگیشن کو کال کر کے متعلقہ مقدمات کی تفتیش بارے احکامات جاری کیے۔ DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کا کہنا تھا، مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے عوام الناس کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ افسران آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں۔ DIG انویسٹیگیشن کا مزید کہنا تھا، عوام کے مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہم وقت کھلے ہیں۔ کیمرامین رانا عامر کے ساتھ رانا سرور، NTN نیوز لاہور۔ ملک بھر کی طرح دنیا پور میں بھی مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ اشیاء خورنوش کی چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ غریب آدمی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا پور سے چودھری دانش نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو اس وقت سبزی والے کی دکان پر موجود ہیں۔ جی دانش، شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگر بات کی جائے دنیا پور کی، تو دنیا پور میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ سبزی کی قیمتوں میں ہوش و ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ شہری بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک میرے ساتھ شہری موجود ہیں جو سبزی خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی، آپ سبزی خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
इस हवाले से क्या करें, मज़दूर आदमी हैं, ताज़ी मजदूरी वाले हैं, सब्ज़ी की पहुंच नहीं ले सकते, सब्ज़ी इतनी महंगी है कि सब्ज़ी भी हम मजदूर आदमी नहीं ले सकते। लिहाजा मेहरबानी करें, कुछ सब्ज़ी कंट्रोल करें महंगाई पे, तो लिहाजा गरीब आदमी 2 टाइम की सब्ज़ी तो ले सके, बच्चों को 2 टाइम का खाना तो खिला सके। मजदूर ड्राइवर आदमी हैं, ताज़ी मजदूरी वाले हैं, इतना नहीं कि हम सब्ज़ी ले सकें। इतनी महंगी सब्ज़ी हो चुकी है, जो पहले 30 रुपये थी अब वो 300 रुपये किलो हो चुकी है। लिहाजा मेहरबानी करें, कंट्रोल करें महंगाई पे, कोई गरीब आदमी 2 टाइम का खाना तो खा सके। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि सब्ज़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, तो आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि सब्ज़ी की कीमतों में कमी की जाए ताकि 2 वक्त का बच्चों को हम खाना खिला सकें। जी, भारतीय नस्ल का नायाब बारहसिंगा नारवाल के करीब सरहदी इलाके में देखा गया, जिसे मुकामी अफराद ने काबू करके महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बारहसिंगा सरहद पार से आकर खेतों के करीब भटक रहा था। इत्तला मिलते ही शहरी बड़ी तादाद में जमा हो गए और इस नायाब जानवर को देखने के लिए रश लग गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक बारहसिंगे को महफूज पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ाय से कुदरती माहौल में छोड़ा जाएगा ताकि इसकी नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके।